Ashutosh, senior journalist, continues with us. Ashutosh, your first thoughts. On the one hand, you have PM face, PM face, PM face. And then on the other, you have got only Mr. Modi's face, and everywhere else, it's only the organization that matters, irrespective of who the candidate is, who's the CM. Yeah, I think every political party has a strategy on its plate. If BJP going to the elections in assembly election in Rajasthan, Madhya Pradesh, and Chhattisgarh, they did not project any face as a chief ministerial candidate. It worked for them. So Congress also Congress had gone with Ashok Gehlot and Kamal Nath. It didn't work for them. So which is my question. Do you think that in this obsession with who is going to be the PM face, they are actually getting it wrong, because that has suddenly no. I think ceased to matter. They are in the process of trying to finalize whether they should go ahead with a face or they should not have any face at all, because there is a clear divide within the India Gathbandhan, and a section of the leaders and the top leaders think that they should go ahead with the face, and others think that the issue should be more important. Because if they are going ahead with a face, then they will be they will have to compete with Narendra Modi. And in terms of the stature, in terms of being the prime minister for 10 years, it will be difficult for that face to compete with Narendra Modi. And then the whole debate will be sidetracked. So then why is there this continuing obsession of trying to project someone? That was the initial idea, right? That we'll just go ahead with a common agenda and no face. I said there is a division within the India Gathbandhan. Like there is a leader like Mamata Banerjee and Kejriwal who think that they should go ahead with a face, and that's why they suggested Kharge's name. And but Sharad Pawar and others think that they should not go ahead with a face. So they are in the process, and I think it will take. It's not an easy question to answer. In my opinion, there should not be any face at all. Okay, अवधेश जी, क्या ये strategy काम कर सकती है INDIA के कि वो छोड़ दे मुद्दा of having a prime minister face and just have a broader message, एक positive message कि मोदी को हटाने के लिए ये हमारा message है? नहीं, ये तो आशुतोष जी अपना विश्लेषण दे रहे हैं। इस समय जो INDIA है उसमें अलग अलग पार्टियों के अपने अपने फेस हैं। INDIA की अभी जो बैठक है उसके एक दिन पहले टीएमसी के नेताओं ने अलग अलग बयान दिया कि चूंकि ममता बनर्जी 7 बार की MP है, 7 टाइम्स MP है, 5 टाइम्स MLA है, 3 टाइम्स CM है, नरेंद्र मोदी के खिलाफ फाइट करती हैं, तो उनको फेस बनाया जाना चाहिए। ये तो टीएमसी की डिमांड आ गई थी। बाद में ममता बनर्जी जी ने यहां आकर मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम प्रस्तावित कर दिया। वो एक स्ट्रेटेजी थी कि मेरा नाम प्रस्तावित हो रहा है लेकिन मैं नहीं हूं, मैं तो मल्लिकार्जुन खड़गे को चाहती हूं, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे को कांग्रेस चाहेगी नहीं। कांग्रेस के कैंडिडेट हमारे सामने है राहुल गांधी, जेडीयू के कैंडिडेट नीतीश कुमार है, तो से अदर जितनी पार्टियां हैं उतने इनके अलग अलग के कैंडिडेट्स हैं। और जो सबसे बड़ा भय है कि नरेंद्र मोदी ने जो अपनी कार्य क्षमता प्रमाणित किया है, जो उनकी बोलने की शैली है, अगर उनके सामने कोई आएगा, जब वो अपने तर्कों से ध्वस्त करेंगे उसके कैरेक्टर को, तो उस आदमी का पॉलिटिकल लाइफ रहेगा कि नहीं रहेगा। और जो तीसरी बात इसमें आती है कि भाई नरेंद्र मोदी ने एक अचीव करके मुख्यमंत्री के रूप में, प्राइम मिनिस्टर के रूप में दिखाया है। जब भी कोई कैंडिडेट सामने आएगा और एक आदमी 2047 का विजन दे रहा है कि हमको वर्ल्ड का सुपर पावर बनाना है, हमको अगले 5 वर्ष में देश को 3rd इकोनॉमी ले जाना है, उसके पैरेलल कौन व्यक्तित्व है जो इस प्रकार का विजन, तो देश उसकी तुलना करेगा। तो एक फियर है अंदर कि अगर किसी को बनाया गया, एक तो अंतर मतभेद है कि हम किसको मानेंगे, दूसरा एक भय भी है कि अगर हम बनाएंगे तो इन सब बातों का हमारे सामने क्या जवाब होगा। ये जो आपका लॉजिक है, एजेंडा तो है, तो इस लॉजिक से तो फिर नीतीश कुमार सेट बैठते हैं। चीफ मिनिस्टर हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस है, मल्टीपल टर्म्स उनके रहे हैं, तो अगर नरेंद्र मोदी का गुजरात मॉडल हमें देखना है एज PM फेस, तो नीतीश कुमार सही बैठते हैं जो लोग बोल रहे हैं। नरेंद्र मोदी का भारत मॉडल भी है, नरेंद्र मोदी की फॉरेन पॉलिसी में जो एक अंतर्राष्ट्रीय विजन है वो भी है, नरेंद्र मोदी का एक कल्चरल सिविलाइजेशन विजन में हमारे सामने है। और नीतीश कुमार तो निश्चित रूप से थे, लेकिन इस समय नीतीश कुमार की उनकी ही पार्टी उन पर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं है कि ये कब पाला बदल दें। और अभी भी चल रहा है कि हो सकता है वो NDA में ही आ जाए।
इस समय की जो वहां स्थिति है, आज उनकी पार्टी के अध्यक्ष ने त्याग पत्र दे दिया क्योंकि वो हटाने वाले थे। नीतीश कुमार इस समय भारत में मुझे लगता है द मोस्ट माने ऐसा व्यक्ति जिस पर कोई विश्वास करने वाला नहीं, उनका क्रेडिट ही नहीं है। तो जिस व्यक्ति का क्रेडिट स्वयं नहीं है, अपनी पार्टी में नहीं है, जिसके साथ वो नरेंद्र मोदी के सामने कैसे खड़े हो सकते हैं? लेकिन आशुतोष wants to respond. कुछ लोग उनके प्रोजेक्ट करते रहे, जिस व्यक्ति ने प्रोजेक्ट किया आज वो पार्टी में नहीं है। देखिए, अखिलेश जी कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी का विजन है, विदेश नीति में विजन है। विजन तो इतना है कि मालदीव ने आपको कहा कि आप यहां से निकल जाइए। विजन तो यह कि कनाडा आपके खिलाफ किस तरीके की बकवासबाजी कर रहा है। विजन तो यह है कि अमेरिका आपसे कह रहा है कि भाई आप जांच करिए, आप हमारे लोगों को क्या कर रहे हैं। देखिए, विजन तो यह भी था कि हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो जाएंगे। विजन तो यह भी था कि 2022 में किसानों की आय दुगनी हो जाएगी। लेट्स नॉट गेट इनटू दैट बिकॉज़ दैट्स अ वेरी स्लिपरी टेरेन। द फैक्ट, मैंने पहले भी कहा कि हर पॉलिटिकल पार्टी का, हर गठबंधन का अपना एक एजेंडा होता है। अगर भारतीय जनता पार्टी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, झारखंड, इन तमाम राज्यों के अंदर बिना फेस के जा सकती, चुनाव लड़ सकती, चुनाव जीत सकती है, और उसको लगता है कि जो उस वक्त वहां की सरकारों के खिलाफ जो इनकम्बेंसी है उसको मुद्दों के आधार पर परिवर्तित करेंगे तो ज्यादा फायदा होगा। अब ये तो उनको तय करना है। जहां तक ममता बनर्जी की बात है, अभी तक याद है कि ममता बनर्जी ने आज तक एक बार भी नहीं कहा कि प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार। नीतीश कुमार ने एक बार भी नहीं कहा मैं प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार है, क्योंकि ये अगर आपको याद होगा हरियाणा का जब चुनाव हो रहा था पिछली बार, जब खट्टर साहब चीफ मिनिस्टर नहीं बने थे, तो बीजेपी ने कहा था कि हमारे पास 5 मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं, और उन 5 लोगों ने मेहनत की और हरियाणा को जिताया। आज ये इंडिया गठबंधन के साथ क्यों नहीं हो सकता? हर आदमी का मैं प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता हूं, अपने राज्य में हम ज्यादा से ज्यादा सीट जीत के लेकर, ये भी तो एक स्ट्रेटजी हो सकती है। Okay, maybe they can have an alternative strategy, either model that can work for them. Whatever works, may the best man win. But these are still interesting straw in the winds to pick up. Thank you very much, Avdesh ji, Ashutosh ji, for joining us with your wisdom. Thanks for watching. Quick look at what else is making news across the country.